وہ پیدا ہوتے ہیں جو عوام کو وہاں تک لے جاتے ہیں جہاں وہ جانا چاہتے ہیں. لیکن لیڈر اور عظیم لیڈر میں بھی بہت فرق ہوتا ہے. عظیم لیڈر وہ ہوتا ہے جو عوام کو وہاں تک پہنچاتا ہے جہاں وہ جانا تو نہیں چاہتی لیکن شاید وہاں پر عوام کو ہونا چاہیے. ہمارا ملک پاکستان آج ایک آزاد ملک ہے لیکن اس کے باوجود ہمیں ایسے قائدین اور لیڈرز کی ضرورت ہے جو ہماری عوام کو وہاں تک لے کر جائیں جہاں شاید ان کا شعور بھی نہیں ہے کہ انہیں کہاں ہونا چاہیے. ہمارے بہت سارے عظیم لیڈرز ہماری ہسٹری میں موجود ہیں جیسے قائد اعظم علامہ اقبال, لیاقت علی خان. ایسے ہی بہت سارے نام ہماری ہسٹری میں موجود ہیں جنہوں نے ملک کے لیے وہ بہت کچھ کیا, بہت قربانیاں دی اور پھر پاکستان آزاد ہوا. پاکستان کو آج بھی ایک آزاد ملک ہونے کے باوجود ایسے ہی لیڈرز کی ضرورت ہے. ہمارے ساتھ آج ہمارے ملک کے ایسے ہی دو مایہ ناز لیڈر موجود ہیں جو کہ عوام کو وہ شعور دینا چاہتے ہیں جہاں پر ہماری عوام جائے گی اور جس کے ذریعے ہماری عوام اپنے حقوق کو لینا چاہے گی. میرے ساتھ موجود ہیں دو عظیم لیڈر, دو عظیم بھائی جنہوں نے اپنی محنتوں کے بعد دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کیا. وداؤٹ اینی فردر ڈیلے میں آپ کا تعارف کروانا چاہوں گی ایسی ہی دو عظیم ہستیوں کے ساتھ. تحریک پاکستان کے رہنما مولانا غلام قادر خان کے فرزندان, مایہ ناز سائنسدان, اسکالر اور معروف امراض جلد و غذائیات چیئرمین پاکستان امن لیگ ڈاکٹر محمد معظم محمود خان ریاضی صاحب. السلام علیکم سر, ویلکم ٹو دا شو. کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر, بالکل ٹھیک. ہمارے آج کے دوسرے مہمان ہمارے ملک کے مایہ ناز سائنسدان, اسکالر, معروف امراض جلد و غذائیات, شریک چیئرمین پاکستان امن لیگ ڈاکٹر محمد احسان الحق خان ریاضی صاحب. السلام علیکم سر. ویلکم ٹو دا شو. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا فضل ہے, ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک. تو سر میرا پہلا کویسچن آپ سے ہوگا کہ آپ نے پاکستان امن لیگ بنائی. ہمارے ملک میں پہلے بہت ساری پارٹیز کام کر رہی ہیں اور بہت بڑے بڑے نام ہیں, تو آپ نے اپنی پارٹی کا کیا ایسا آپ کا منشور ہے جس کے بل بوتے پر آپ عوام کو وہ سب کچھ دیں گے جو آپ سے پہلے والی پارٹیز نہیں دے سکتی؟ عرض یہ ہے کہ ہمارا اور دوسری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا جو مین ڈفرنس ہے وہ ہے چینی اور پیٹرول. پیٹرول بھی ہم نے شمسی توانائی سے اپنے فارمولے سے تیار کر لیا اور چینی بھی شمسی توانائی سے, ہر فروٹ سے اپنے فارمولے سے ہم نے تیار کر لیا. اور یہ کہہ لیں کہ میں بارہا ٹی وی ٹاک شوز میں, بارہا سائٹس پر یہ کہہ چکا ہوں کہ ہمارے پیٹرول کے اوپر ایکسپینسز آنے ہیں 1 ارب کے قریب, اور اگر دریا کی کیپیسٹی کا پانی سٹور کر لیا جائے تو 22 کروڑ عوام میں پر ہیڈ 50 پیسے سے بھی کم پر لیٹر پیٹرول پڑتا ہے, جو کہ ہم نے اس قوم کو فری دینا ہے. لیکن افسوس کی بات کہ یہاں یہ 1 ارب لگانا اپنی توہین سمجھتے ہیں اور اربوں ڈالر IMF اور دوسروں کے گھٹنے پکڑ کر لینا اپنا فخر سمجھتے ہیں. وہ اس لیے فخر سمجھتے ہیں کہ وہاں ان کا TADA بھی اربوں میں بن جاتا ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ اس سے ملک اور قوم سٹینڈ ہونی ہے, یہ دیکھتے ہیں کہ ان سے ان کی پاکٹ منی اور بینک بیلنس سٹینڈ ہونے ہیں. اور دوسرا آپ نے کہا ہے کہ آپ کس پوائنٹ پر اس قوم کو آگے لے جانا چاہتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس وقت جو نیکسٹ الیکشن میں اقتدار کی دعوے دار بنی ہوئی ہیں, وہ اس وقت سب اقتدار میں بیٹھی ہوئی ہیں. پیپلز پارٹی, نون لیگ, PDM کی جتنی اتحادی جماعتیں ہیں, اور پھر PTI, اور PTI KPK اور پنجاب میں حکومت میں ہے لیکن مہنگائی کنٹرول نہیں کر سکی, بے روزگاری کنٹرول نہیں کر سکی, اور ان لوگوں کو پھر شرم نہیں آتی, کہتے ہیں نیکسٹ الیکشن میں ہمیں 2/3 اکثریت دیں. کاہے کی آپ کو 2/3 اکثریت دیں؟ آپ کو تو چھلڑ اور ٹماٹر پڑنے چاہیے جس قسم کی آپ لوگوں کی پرفارمنس ہے. نہیں تو سر وہ جو 1 ارب روپیہ آپ نے بولا ہے کہ لگائیں, تو اس 1 ارب کے بعد ہمارے ملک میں اتنا پیٹرول آ جائے گا کہ وہ پورے ملک میں سپلائی ہو سکے. بالکل جی, اب میں بتا چکا ہوں دریا کی کیپیسٹی کا پانی سٹور کر لیا جائے
تو پر ہیڈ 50 پیسے سے بھی کم پر لیٹر پیٹرول پڑتا ہے، جو کہ ہم نے قوم کو فری دینا ہے۔ اب یہ جو اربوں ڈالر لگاتے ہیں، اربوں ڈالر میں، اور قوم کے اوپر مہنگائی کا 15 ڈیز بعد بم گرا رہے ہیں، تو وہ بم سے آپ کی قوم بچ جائے گی، اور جو اربوں 1 ارب ہمارے ایکسپینسز آنے ہیں، باقی جو ارب ہیں وہ قوم پہ لگے گا، ملک پہ لگے گا، اور ہمارا پرسیومنگ پیٹرول ہے وہ مارکیٹ میں آ گیا تو وہ انشاءاللہ پوری دنیا پر چھائے گا، اور ہم جہاں بھی جاتے ہیں اپنا پیٹرول اور چینی لے کر جاتے ہیں۔ آج آپ کے بھی اس شو میں آئے ہیں، پیٹرول اور چینی لے کر آئے ہیں، وہ آپ منگوائیں اور عوام کو بھی دکھائیں۔ مہنگائی اور بے روزگاری ہمارے ملک کے 2 بہت اہم مسئلے ہیں، اور شاید ہماری جو پہلی پارٹیز یا حکومتیں ہیں ان کے فلاپ ہونے کی وجہ بھی یہی رہی ہے کہ ابھی شہباز شریف آئے وزیر اعظم بنے تو ان کی بھی مہنگائی پہ بہت زیادہ عوام نے کہا کہ انہوں نے مہنگائی آتے ہی کر دی ہے۔ انہوں نے اس میں سے کچھ کا قصوروار عمران خان کو ٹھہرایا کہ اس کی حکومت نے 4 سال میں کچھ نہیں کیا۔ تو آپ کیسے مہنگائی اور بے روزگاری کو کنٹرول کریں؟ میں پہلے کئی ٹی وی پروگرامز میں یہ کہہ چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے، یعنی کہ میں ڈاکٹر احسان الحق نیازی اور میرا چھوٹا بھائی ڈاکٹر معظم محمود خان نیازی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ایسی خداداد صلاحیت سے نوازا ہے کہ ہم نے اپنی سچ و تحقیق سے شمسی توانائی کے ذریعے چینی اور پیٹرول تیار کر لیا ہے، اور ہم اپنے اس چینی اور پیٹرول کے ذریعے پوری قوم کو مہنگائی سے نجات دلائیں گے اور بے روزگاری کا خاتمہ کریں گے۔ پاکستان بھر میں اور پاکستان کے ہر صوبے، ہر ضلع میں ہر فروٹ کی شوگر ملیں لگائیں گے۔ جس وقت شوگر ملیں لگیں گی تو ویکنسیاں نکلیں گی، نوکریاں نکلیں گی۔ وہ جو لوگ بے روزگار ہیں وہ ان کو روزگار مہیا ہوگا۔ جس وقت روزگار مہیا ہوگا تو بے روزگاری ختم ہوگی، بے روزگاری ختم ہوگی تو ملک خوشحال ہوگا اور لوگ ہمیں دعائیں دیں گے۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ شہباز شریف عمران خان کو مہنگائی کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے، میں یہ کہوں گا کہ نون لیگ، شہباز شریف، پی ٹی آئی، عمران خان کو میں یہ کہوں گا کہ آپ کی نااہلی، نالائکی اور قومی اور جمہوری مسائل میں ناکامی، اور موجودہ حکومت مرکز میں نون لیگ کی حکومت، پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت، کے پی میں پی ٹی آئی کی حکومت، سندھ میں پی پی کی حکومت، ان لوگوں نے مہنگائی اتنی کر دی ہے کہ پاکستان کے غریب، بے بس، سفید پوش لوگوں کی کمر توڑ دی ہے، اور لوگ بے روزگاری ان حکومتوں نے، نون لیگ نے، پی ٹی آئی نے، پی پی نے اور نون لیگ کی اتحادی جماعتیں، پی ڈی ایم نے، جو اس وقت اقتدار میں ہے، غریب، سفید پوش، مزدور
बेबस लोगों से उनकी बुनियादी जरूरियात जिंदगी महंगा करके उनसे रोटी का हक छीन लिया है और लोगों को फाकों पर मजबूर कर दिया है। फाकों की वजह से लोग खुदकशियां कर रहे हैं। और इमरान खान, आप लोग डबल गेम खेल रहे हैं। इस्लाम और एंटी अमेरिकन पॉलिसी अपनाकर कौम को, पाकिस्तान को, पाकिस्तानी आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं और बेवकूफ बनाकर लोगों को अपने पीछे लगा रहे हैं। पीटीआई, नून लीग, पीपीपी और पीडीएम की इत्तेहादी जमातों ने मुल्क का बेड़ा गर्क करके लोगों को, गरीब लोगों को बेबस करके उनकी महंगाई की वजह से कमर तोड़ दी है। खुदारा नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, आप लोग इस वक्त उम्र के उस हिस्सा में है। आप अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगे और सियासत छोड़कर नए आने वालों को मौका दें। और इमरान खान, तुम इस्लाम फोबिया करते हो। आपके बच्चे यहूदियों के घर में पढ़ रहे हैं, उन्हें इस्लाम की अलग बेनी ही आती, तो पहले उन्हें इस्लाम की अलग बे तो पढ़ाओ। इमरान खान और ये तीनों सियासी जमातों ने मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया है। अगर हमें मौका मिला तो हम इस मुल्क का मुस्तकबिल अपनी रिसर्च और तहकीक से तैयार करदा चीनी और पेट्रोल से रोशन कर देंगे और मुल्क में खुशहाली ले आएंगे। इंशाअल्लाह सर, लेकिन आपने अभी बोला कि हम लोग मुल्क में शुगर मिल्स भी लगाएंगे और शुगर मिल्स और फ्रूट्स की बेस पे लगेंगी। फ्रूट्स से और शमसी तवानाई से आप उन्हें प्रोड्यूस करेंगे चीनी को। लेकिन सर, जो आप चीनी प्रोड्यूस कर रहे हैं, अभी पिछले दिनों में यही देख रही थी कि उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में चीनी इतनी ज़्यादा हो गई है कि हमें वो बरामद करनी चाहिए, बाहर भेजनी चाहिए, क्योंकि अगर चीनी वही रही तो नेक्स्ट जो ईयर आएगा उसमें तो हमारे किसान और जो मिल्स के मालिक हैं वो सारे तो आ जाएंगे नीचे, वो तो बर्बाद हो जाएंगे। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि जब एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो जब मुल्क में इतनी ज़्यादा चीनी की मिलें लगेगी तो रोजगार तो मिलेगा आवाम को, तो लेकिन क्या चीनी हमारी नहीं पड़ेगी? ये मुल्क के लिए बेहतरी होगी। हम अपनी चीनी शमसी तवानाई से तैयार करदा पेट्रोल और चीनी कौम को फ्री फराहम करेंगे और बाकी चीनी हम अक़वाम-ए आलम में सेल करेंगे और उसकी जो इनकम आएगी वो इस काम पर लगाएंगे, इस मुल्क पर लगाएंगे। हम इस मुल्क को दुनिया की अजीम सल्तनत बना देंगे और ये पाकिस्तान दुनिया की अजीम सुपर पावर बन जाएगा, जहां दुनिया नौकरी के लिए लाइनों में लगी हुई होगी और पाकिस्तान IMF के चंगल से छुड़ा देंगे। ओके सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपसे है कि हमारे मुल्क में सेहत का मसला एक बहुत बड़ा मसला है और इलाज इतने महंगे हैं कि गरीब आवाम जो है वो तो इलाज करवा भी नहीं सकती। तो आप सेहत के मसले को किस तरह लेंगे, आपकी पार्टी किस तरह से सॉल्व करेगी? मैं बेशुमार टीवी शोज में कह चुका हूं कि हम
मुल्क भर में यूनियन काउंसिल की सतह पर पूरे मुल्क में लेडी हेल्थ वर्कर्स के साथ एक डॉक्टर तैनात करेंगे जो घरों में जाकर लोगों को सेहत की सहूलियात फ्री मुयसर करेंगे और उन्हें फ्री मेडिसिन देंगे और सीरियस किस्म के मरीज सिर्फ हॉस्पिटल में जाएंगे जहां उनके मसाइल हॉस्पिटल में हल होंगे। इससे हॉस्पिटल में पब्लिक का रश कम होगा, वो इसलिए कि कौम को उनके घर की दहलीज पर डॉक्टर्स और लेडी हेल्थ वर्कर की सहूलियात मुयस्सर होंगी। ओके सर, तो सर अगर हम लोग देखें, आपने कहा कि हम पेट्रोल फ्री दे रहे हैं, चीनी फ्री दे रहे हैं, उसके बाद इलाज की सहूलत जो है वो भी फ्री देंगे, और अगर हम पिछली हुकूमतों को देखें तो वो तो ये कह रहे हैं कि हमारे मुल्क के खजाने में कुछ है ही नहीं। तो आप इक़्तिदार में आ रहे हैं तो आप कैसे इस चीज़ को बैलेंस करेंगे, कैसे फ्री देंगे? फ्री देंगे अगर अल्लाह ताला की जात ने हमें मुल्क के आला मनसब पर हम दोनों भाइयों को फायद किया तो हम अपनी रिसर्च और तहकीक से तैयार करदा फ्रूट चीनी और शमसी तवानाई से तैयार करदा पेट्रोल हम तैयार करके कौम को एक तो फ्री देंगे, दूसरा ये अक़वाम आलम में हम सेल करके इसकी जो इनकम आएगी वो इस मुल्क पर लगाएंगे, इस कौम पर लगाएंगे और इस कौम के कर्जाजात हम 6 माह के अंदर खत्म कर देंगे। मैं मौजूदा पंजाब की हुकूमत जो कि पीटीआई की हुकूमत है, मैं इमरान खान से पूछता हूं, इमरान खान आपने कहा था परवेज लाई एक बहुत बड़ा डाकू लुटेरा और चोर है, और अब आपने उस चोर डकैत फ्राडिये लुटेरे इंसान को पंजाब का वजीर आला बना दिया है, और इस शख्स ने आते ही महंगाई इतनी कर दी है कि अवाम की सोच से भी ज्यादा ये पीटीआई की हुकूमत या नून लीग की हुकूमत या सिंध में पीपी की जो हुकूमत है या केपी में इमरान की हुकूमत है, इमरान को और इनकी हुकूमत को या नवाज शरीफ को उनकी डकैती चोरी नाहरी की वजह से निकाला गया है। यह बीमार लोग हैं, यह पाकिस्तान से इलाज भी नहीं करवा सकते, इनकी उम्र अल्लाह तौबा करने की है और बाबे हो चुके हैं। और खुदा इस मुल्क को अब आप तीनों पार्टी पीटीआई पीपीपी नून लीग की कोई जरूरत नहीं है। लोग आपसे बहुत चुके हैं, आपकी नहली नलकी और निकम बन की वजह से मुल्क इस वक्त माशी मसाइल से दो
लाचार है। खुदारा इस कौम का कुछ सोचो। और इमरान खान, तुम दोबारा हुकूमत के ख्वाब देख रहे हो। आपके दिल में इस कौम की क्या दर्द था? बनी गाला से वजीर आजम हाउस तक का तरफ सफर सिर्फ चंद मिनटों का 50 रुपए में था। अगर आप गाड़ी पर आते तो पेट्रोल के जरिए, तो आपके अंदर इस कौम का दर्द इतना था कि आप हेलीकॉप्टर पर वजीर आजम हाउस आते और दिन में 6 से 7 मरतबा, 5 से 10 मरतबा वजीर आजम हाउस हेलीकॉप्टर के जरिए आते और करोड़ों का पेट्रोल जाया करते। जबकि अगर गाड़ी पर आते तो चंद 100 रुपए का पेट्रोल बनता था, जो आपने नहीं लगाया और अपना प्रोटोकॉल कायम रखा। इमरान खान, आपने गवर्नर हाउस नहीं गिराया, आपने वजीर आजम हाउस को यूनिवर्सिटी नहीं बनाया, आपने नौजवानों को 1 करोड़ नौकरियां देनी थी। अगर आप 1 लाख भी दे देते तो मैं मान जाता। आपने 50 लाख घर बनाकर पाकिस्तानी कौम को देना थे और 50 लाख घर तो बड़ी दूर की बात है। आप 100 घर भी बनाकर गरीबों को दे देते तो कौम आपके लिए वाह वाह करती, आपको गालियां ना देती, आपको बुरा ना कहती। आपकी नालायकी की वजह से कौम आप भी आपको गालियां दे रही है। खुदारा इस कौम का पीछा छोड़ दो, 2 नंबरी छोड़ दो, फ्रॉड छोड़ दो, झूठ छोड़ दो, करप्शन छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब आपसे है कि हमारी खारजा पॉलिसी क्या होगी? जाहिर है कि हमने अगर अपने मुल्क को बैलेंस करना है तो हमने बाहर के ममालिक के साथ, तो खास तौर पे इंडिया, अफगानिस्तान और दूसरे मुल्क जिनके साथ शायद पाकिस्तान की बहुत सालों से दुश्मनी चल रही है, खास तौर पे इंडिया के साथ हमारी कश्मीर की वजह से बनती भी नहीं, तो आप कैसे अपनी खारजा? बात यह है कि हमारे कंट्री का दूसरे कंट्रीज के साथ जो रिलेशन डिस्टर्ब है, उसकी मेन वजह है कि कशकोल इन्होंने हाथ में पकड़ा होता है और उस मुल्क में जाते हैं। जो मुल्क इनके कशकोल में खरात डाल देता है, ये समझते हैं जी हमारा इसने बहुत रिस्पेक्ट की, हमारी बहुत इज्जत की, उसको ये समझते हैं कि इसके साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं। और जो इनके कशकोल में खरात नहीं डालता, ये कहते हैं जी इसके साथ हमारे रिलेशन डिस्टर्ब है। आप मुझे ये बताएं, आपके घर का कोई ब्लड रिलेशन हो, वो आपसे डेली कोई चीज़ मांगे तो आप 1 बार तो खुशी से दे देंगी, 2 बार दे देंगी, तीसरी बार देंगी तो आपके माथे पर बल होगा और उसके साथ ऐसा तंजिया तरीके से पेश आएंगी कि वो अगर तो उसमें इंसानियत गैरत होगी तो वो दोबारा आपके पास से नहीं मांगेगा। लेकिन इनकी वो गैरत भी ख़त्म हो चुकी है, इनकी वो हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है और उस प्रोसेस से पे ये पहुंच चुके हैं कि इनको अपनी इज्जत बेइज्जती का नहीं है और इसी वजह से हमारे रिलेशन डिस्टर्ब है। जिस वक्त अल्लाह ने हमें मौका दिया तो आप देखिएगा कि हमने IMF को भी इंशाल्लाह आगे स्टैंड लेना है, हमने उनका पेट्रोल नहीं लेना, हमने अपना पेट्रोल अपनी कौम को देना है और आउट ऑफ कंट्री हमने सेल करके जो भी होगा इंशाल्लाह ये कंट्री सालों में नहीं महीनों में अपने पाँव पर स्टैंड होगा। आप मुझे ये बताएं, जिस भी कंट्री के पास तेल की पावर है उसकी करेंसी इस वक्त डॉलर को क्रॉस किए हुए है और हमारे पास एक तो तेल की पावर, सेकंड हर फ्रूट की चीनी, ये 2 पावर्स हमारे पास हैं
اور اس کے باوجود ہم یہ کہیں کہ ہماری قوم خوار ہوگی. 1960 والے ریٹ پر ہم چیزیں لے آئیں گے. اور ان میں سے جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں ان کی اتنی اوقات ہی نہیں ہے. یہ 1960 تو بڑی دور کی بات, یہ جو مہنگائی چل رہی ہے اس میں سے 10 روپے بھی کم کر دیں. اور دوسرا, آپ نے پہلے وہ ڈاکٹر صاحب سے کویشچن کیا تھا کہ خزانے میں اتنا کچھ نہیں ہے, خزانہ خالی ہے. میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں, جس وقت ان سے یہ کہا جاتا ہے آپ اس قوم اس ملک کے لیے کچھ کریں, تو یہ لوگ کہتے ہیں خزانہ خالی ہے. اور جب ان کو کہا جاتا ہے جناب آپ کی پارٹی کو خطرہ ہے, فلاں پارٹی نے آپ کے اتنے ممبر ہیر کر لیے ہیں, تو اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ پر ممبر خریدنے کے لیے 40-50 کروڑ ان کی پاکٹ سے نکل آتا ہے. اگر وہ 50 کروڑ کی اس قوم اس ملک پر لگا دیں تو قوم اتنی ابتر نہ ہوتی. لیکن افسوس کی بات, یہ اپنی وہ کہہ لیں کہ لوٹ مار میں پڑے ہوئے ہیں. اور یہ جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز ہیں, مریم نواز ہو گئی, خان صاحب ہو گئے, مولانا صاحب ہو گئے, یہ جناب جلسے کر رہے ہیں, جلسوں کا کروڑوں پھونک رہے ہیں اور نعرہ لگاتی ہیں عوامی ہمدردی کا, نعرہ لگاتے ہیں عوام سے کہ جی ہم غریبوں کے ساتھی ہیں. ان غریبوں کے ساتھیوں سے یہ پوچھئے, یہ بلوچستان ڈوب رہا ہے, وہاں انہوں نے خوراک اتنی پہنچائی ہے, حالانکہ پاور بھی ان کے پاس ہے, حکومت بھی ان کے پاس ہے, دوسرے صوبوں میں سیلاب آ رہے ہیں اور یہ اپنی من مستیوں میں پڑے ہوئے ہیں. خان صاحب کو لوگوں نے اربوں کے فنڈز دیے, وہ اربوں کے فنڈز انہوں نے صرف جلسوں میں پھونکے. مجھے خان صاحب یہ بتائیں کہ انہوں نے عوام کے لیے کیا کیا ہے. ہم تو عوام کی یہ کہہ لیں کہ اویئرنیس دینے کے لیے ہر شہر میں چینی اور پٹرول فری بانٹ رہے ہیں, اس لیے کہ اب بھی عوام سمجھ جائے, اب بھی عوام شعور, ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ باشعور قوم ہے, اب بھی اپنے اس جو ان کی وہ سو چکا ہے شعور, وہ جاگ اٹھے کہ انہوں نے صرف ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے رکھنا ہے. انہوں نے ان کو اس قوم کو کچھ نہیں دینا. یہ کیکر کا درخت ہے, اب کیکر کے درخت میں وہ سیب کی تمنا کر کے بیٹھی ہوئے ہیں کہ وہاں سے سیب گریں گے, وہ نہیں گریں گے. کیکر کا درخت تو وہ ہے کہ جو اس کے قریب سے گزرتا ہے اس کے وہ کپڑے بھی کھینچ لیتا ہے. انہوں نے جس طرح کی مہنگائی کر دی ہے تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کا قومی لباس نکر بنایا نہ ہو جائے. تو سر آپ کیا سوچتے ہیں کہ آپ کے پیٹرول اور چینی سے جو ہمارے پاس پیسے آئیں گے ان کو سیل کرنے سے باعث سے ان سے ہمارا ملک بیلنس میں آ جائے گا؟ میں بتا چکا ہوں کہ فرسٹ منتھ سے ہی اربوں ڈالر بچ جانا ہے. اب کروڑوں ڈالر جو یہ لیتے ہیں پیٹرول اور چینی, ہمارا تو 1 ارب خرچ آنا ہے. جو یہ اربوں ڈالر لے کر پھر اس میں سے ٹی اے ڈی اے بھی ان کا اربوں بن جاتا ہے, تو وہ اربوں ڈالر بچنا ہے تو وہ کس پر لگنا ہے؟ اس ملک پر لگنا ہے, اس قوم پر لگنا ہے. اور ہم نے بہت جلد سٹینڈ ہو جانا ہے. 3 سے 6 ماہ کا ہم نے پیریڈ دیا ہے. انشاءاللہ پہلے ہم یہ قرض بھی اتار دیں گے اور قوم سٹینڈ ہو جائے گی, اور اس ملک کا معیار بہت انشاءاللہ اونچا ہو جانا ہے. اور ہمارے ریلیشنز یہ جو انڈیا یا دوسروں سے, انڈیا سے تو یہ کشمیر کی وجہ سے ہی ڈسٹرب ہے نا, جس وقت یہ پٹرول ہمارا پرفیومنگ پٹرول مارکیٹ میں آنا ہے تو یہ پٹرول نے ایک تو دنیا پر چھانا ہے, تو پھر انڈیا سے ہم کشمیر انشاءاللہ سالوں میں نہیں, مہینوں میں نہیں, انشاءاللہ دنوں میں لے کر اس قوم کو دکھائیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ سے میرا سوال ہے کہ اگر آپ صدر پاکستان بن جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے اور ہمارے سامنے آپ کی پارٹی آئے پاکستان میں اور آپ صدر بنے اور ڈاکٹر صاحب وزیر اعظم بنتے ہیں, تو آپ پاکستان کو کتنے عرصے میں اور کیا تکنیک ہوگی کہ آپ کو قرضوں سے نجات دلائیں گے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم دونوں بھائیوں کو اس جو منصب ہیں ان سے نوازا اور اللہ نے ہمیں یہ چیز دے دی, تو ہم 6 ماہ کے اندر
पाकिस्तान को कर्जों से निजात दिला देंगे और पाकिस्तान को दुनिया की अजीम सुपर पावर बना देंगे, जहां दुनिया नौकरियों के लिए अपने लानों में खड़ी होकर पाकिस्तानी वीरों की तरफदार होगी। सर आपसे मेरा सवाल है कि आप फैसलाबाद के हल्का है 101 से और उसके अलावा मियाँ वाली के हल्का है 87 जो कि बेसिकली इमरान खान का हल्का है, वहाँ से इमरान खान इलेक्शन लड़ते हैं और जीतते भी हैं। तो आप वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसके अलावा आपने ऐलान किया है कि मैं इमरान खान, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो और हमजा शहबाज के खिलाफ इलेक्शन लड़ूंगा कि जिस सीट से ये इलेक्शन लड़ेंगे मैं वहाँ लड़ूंगा और इनको शिकस्त दूंगा, इनको नेशनल असेंबलीज में नहीं आने दूंगा। तो ये आपकी क्या प्लानिंग है, आप कैसे? देखिए जी, इन्होंने सिर्फ ख्वाब दिखाए हैं और इन्होंने अभी ख्वाब ही दिखाने हैं। मैंने प्रैक्टिकली मैंने बताया कि हर सिटीज में अवेयरनेस देने के लिए भी तकसीम कर रहा हूँ और जिस वक्त इंशाल्लाह पावर शो करना है, पहला पावर शो इंशाल्लाह मीनार पाकिस्तान पर होगा, दूसरा पावर शो कराची मज़ार कैद पर होगा, तीसरा फैसलाबाद और चौथा मियांवाली में, और इसके अलावा फिर हर सिटी में भी पावर शो करेंगे। वहाँ मैंने अपना चीनी पेट्रोल वहाँ में तकसीम करना है, आवाम को शऊर देना है कि इसी चीनी पेट्रोल के बलबूते पर इस कौम, इस मुल्क को हमने अपग्रेड करना है। और वो जहाँ से इमरान खान मियाँ वाली से इलेक्शन लड़ते हैं वो मेरे बुजुर्गों का भाई हल्का है और इंशाल्लाह आइंदा इलेक्शन में इमरान खान को मियाँ वाली से इंशाल्लाह एक सीट भी नहीं लेने दूंगा। और बाकी ये जितने भी लीडर्स हैं, ये पाकिस्तान के जितने भी हलकों से खड़े होंगे, मैं इनके मुकाबले खड़ा होऊंगा और मेरी कोशिश यही होगी इंशाल्लाह कि इनको असेंबली में ना पहुंचने दूं। और इंशाल्लाह मुझे 100 से 1000% उम्मीद है कि मैं अपनी इस काविश में इस कौम के थ्रू कामयाब हूँ। डॉक्टर एहसानुल नियाज़ी साहब, आपने भी फैसलाबाद के हल्का NA 100 से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया, जो कि शहबाज शरीफ वहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं। आपने भी इसी तरह जैसे कि आपके भाई ने इमरान खान के खिलाफ या मरियम नवाज के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का कहा, आपने भी कहा कि मैं शहबाज शरीफ, उसके अलावा अगर नवाज शरीफ को मौका मिल जाता है कि वो इलेक्शन लड़ें, उनके खिलाफ आप इलेक्शन लड़ेंगे। उसके अलावा जरदारी में तो जितने भी हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के चेयरमैन हैं उनके खिलाफ आप इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो आपने ये भी कहा कि मैं इनके खिलाफ इलेक्शन लड़ूंगा, इनको इबरतनाक शिकस्त दूंगा। उसमें ऐसा है कि मैं इन तमाम आसफ अली जरदारी हो गए, नवाज शरीफ हो गया, शहबाज शरीफ हो गया, ये तमाम लोग चोर, डकैत, लुटेरे हैं। इन्होंने इस कौम को धोखा और फ्रॉड दिया है और कौम का पैसा पाकिस्तान से दूसरे मुल्कों में अपने बैंकों में रखा हुआ है। मैं इनके मदे मुकाबिल अपनी रिसर्च और तहकीक से तैयार करदा चीनी और पेट्रोल अवाम में फ्री तकसीम करके इन लोगों को इबरतनाक शिकस्त दूंगा और मेरी कोशिश होगी कि ये लोग असेंबली में दाखिल ना हो बल्कि मुल्क से अभी फरार की राह ले। और इसमें हमारे मरकजी जनरल सेक्रेटरी जो हैं मोहतरमा सुल्ताना परवीन खान नियाजी साहब, वो भी हल्का NA 102 फैसलाबाद से ही कॉन्टेस्ट कर रही हैं कौमी असेंबली का इलेक्शन। सर आपने अभी बोला कि हम चाहेंगे कि ये मुल्क से फरार हों, यही राह लें, तो इतने इन पे केसेस वगैरह बने हुए हैं, उन केसेस के बावजूद आप ये नहीं चाहेंगे कि इन्होंने जो मुल्क का पैसा लूटा है वो मुल्क में वापस लाया जाए?
इनको यहीं पे रखा जाए, फरार बात यहीं से ये देखें। है, मैं वो शख्स हूं जिस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस वक्त मिस्र के सरबराह बने तो उन्होंने अपने तमाम भाइयों को माफ कर दिया। मेरे अंदर इंतकाम नहीं है, मैं अपनी रिसर्च और तहकीक से तैयार करदा चीनी और पेट्रोल के जरिए जो अक़वाम आलम में सेल करके रकम हासिल करूंगा वही काफी है, इनको अल्लाह पूछेगा। लेकिन सर देखें, अगर कहते हैं कि अवाम का, ये तो अल्लाह ताला ने भी कहा है कि हुकूकुल इबाद तब माफ़ होते हैं जब अगला इंसान माफ़ कर देता है। तो इन्होंने जो पैसा लूटा है वो हमारी अवाम का पैसा था, हमारी कौम का पैसा था। उसमें ऐसा है, कौम का पैसा था, मुल्क का पैसा था, तो फिर इस कौम को, इस मुल्क के अवाम को खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने इस मुल्क को दो अजीम इंसानों यानी कि डॉक्टर मोहसिन महमूद खान नियाजी और मुझे डॉक्टर सानुल हक नियाजी जैसे अशखास इनको दिए जो अपनी रिसर्च और तहकीक से तैयार करदा चीनी से तमाम रकम पूरी कर लेंगे और इनको सब कुछ माफ कर देंगे। खुदा जब इतना देगा तो फिर इनसे लेने की जरूरत नहीं, बल्कि अगर इनको मजीद रकम की जरूरत होगी तो वो मुझे कहेंगे तो वो भी मैं इन पर निछावर करूंगा। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आसफ अली जरदारी आपके दिल में कौम की इतना दर्द है कि एक कंजरी जो नाचती है आपने उस पर अपनी बेटी बख्तावर की शादी में करोड़ों रुपए नछावर कर दिए और बाहर आपके बेटी की जहां शादी थी और लोग वहां खड़े थे, उनको धक्के देकर जुड़वा दिया एजेंसी के जरिए, पुलिस के जरिए। हालांकि उन पर भी अगर कोई खाना अनाज कर देते तो वो आपको दवाएं देते। डॉक्टर मौसम महमूद खान नियाजी साहब, आपसे यह सवाल है कि आपने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अपने शमसी तवानाई से बनाए हुए पेट्रोल और चीनी फ्राहम करनी शुरू की, लोगों को मुहैया करती है, तो आपने किन किन पाकिस्तान के इलाकों में इसको सप्लाई करना शुरू कर दिया? हमने जी यहाँ फैसलाबाद के घंटाघर में तकसीम की है और गोजरा में तकसीम की है। इसके अलावा कह लें कि एक रैली निकाली थी 10-15 हज़ार की, उस रैली में चीनी अपना पेट्रोल और चीनी तकसीम की गई और अपने पेट्रोल से वो रैली चलाई गई। और अब नेक्स्ट मैं अनाउंसमेंट कर चुका हूँ, लाहौर के मनारे पाकिस्तान का तकसीम करना है, फिर अपने बुजुर्गों के शहर मियाँ वाली और उसके बाद मज़ार कायद और KPK में। इस तरह ये सिलसिला चलता रहेगा और इंशाल्लाह उसके बाद फिर पावर शो स्टार्ट करूँगा। लेकिन इसी से ही ये कह लें कि दूसरी पार्टीज़ की नींदें हराम हो चुकी हैं, क्योंकि उनके पास कौम को देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय वादों के, और हम प्रैक्टिकली ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं कौम को। और इसके बावजूद भी अगर कौम नहीं समझती तो फिर अल्लाह ही हाफिज है इस कौम का कि ठीक है, ये अगर किसी की पर्सनैलिटी से इम्प्रेस हैं तो वो पर्सनैलिटी तक रखें, कौम के ऊपर मुसल्लत ना करें। कौम बेचारी पहले ही है और ये लोग आप देखें माशाल्लाह इनके इतने बड़े दिल हैं, 70 सालों से कौम को ही कह रहे हैं ये कुर्बानी दे। कौम तो कुर्बानी दे रही है और इनकी नाकिस पॉलिसियों की कुर्बानी दे रही है। कभी इतने लीडर्स आए हैं, इतने पार्टीज की गवर्नमेंट आई है, कभी किसी प्राइम मिनिस्टर ने ये अनाउंसमेंट की है कि जनाब मेरे जितने भी MNAs हैं
जितने भी MPs हैं वो अपनी सैलरी नहीं लेंगे, वो अपनी कोई सरकारी मराहत नहीं लेंगे, वो सब कुछ इस कौम इस मुल्क पर निछावर करते हैं क्योंकि मुल्क इस पर नाजुक हालत पर है, वो इस किस्म का इनका दिल नहीं है। लेकिन हम दो भाई यहाँ आपके प्रोग्राम के थ्रू ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं, हमारी ये बात नोट कर लें, इंशाल्लाह मौका तो मिलना ही मिलना है। उन लोगों को मिला जिन्होंने इस कौम को लूटा है, वो 4-4 बारियां ले गए हैं, तो हम तो देकर कौम से मांग रहे हैं ना। ये मेरी बात नोट कर लें, अगर अल्लाह ने हमें मौका दिया तो मेरे पहले कौम से खिताब में यही अनाउंसमेंट होगी कि मेरे जितने भी MNAs हैं, जितने भी MPs हैं, वो ना कोई सैलरी लेंगे, ना कोई सरकारी मराहत लेंगे, और इस कौम की खिदमत करने के लिए हम आए हैं, क्योंकि इन लोगों के दिल चिड़ी हैं। अब आप देखें, शहबाज शरीफ पर मुझे इंतहाई दुख और अफसोस होता है। अवाम के सामने कहता है जनाब महंगाई बहुत है, मैं अपना शलवार कमीज का सूट सेल करने को तैयार हूँ। मियाँ साहब आप बहुत क्लेवर हैं, आप बहुत माशाल्लाह ज़हीन हैं। आपका शलवार कमीज का जो सूट है वो चाइना का 200 रुपए वाला सूट हो और वो 22 करोड़ अवाम में कितना का आ जाएगा वो सेल होकर। आपकी 86 माशाल्लाह शुगर मिल्स हैं और बहुत कुछ है, उस 86 शुगर मिल्स में से कम से कम ज्यादा नहीं तो 10 शुगर मिल्स सेल करके वो ही कौम पर निछावर कर दे।